again, which was recently good. चूंकि सेशन अभी झारखंड का है, देखिए इट्स मोर अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन वुड बी बेनिफिशियल, फोकसिंग ऑन झारखंड मोस्टली एंड आल्सो इफ पॉसिबल बिहार. इसीलिए मोस्ट पार्ट ऑफ द सेशन विल बी क्वेश्चन आंसर ओनली. ओवरऑल थ्रो करने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ मोनोलॉग थ्रो करने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, बट काफी सेशंस मॉक्स आपने दे रखे हैं, इसकी तैयारी कर भी रखी है, मेंस मतलब निकाल भी रखा है, तो बेसिक्स तो रहता ही है. कुछ पॉइंटर्स हैं विच आई वुड लाइक टू मेंशन, जनरल पॉइंटर्स हैं. पॉइंटर नंबर 1 है कि you should always be very crisp in your answering, very crisp but conclusive only. It should not be left with open ends until unless you want to give them open ends. मेरा ऐसे कुछ वीडियोस भी है ऑनलाइन जिसमें मैंने अपने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए, वो बहुत लंबा हो जाएगा कि क्या पूछा था मुझसे और क्या मैंने जवाब दिया था. बट ओवरऑल मेरा यही पिक्चर है इंटरव्यू को लेके कि you only give open ends when you want to. If you don't want to, then close it there itself. और जब फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू में झारखंड रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछा था, तो उससे रिलेटेड भी एक लाइन बोल दूंगा कि व्हेन यू एक्चुअली नो द आंसर, यू शुड नॉट आंसर इट इंस्टेंटली. जैसे दे आस्क्ड मी व्हाट आर द 3 प्रॉब्लम्स यू थिंक झारखंड हैज, तो आई इंस्टेंटली सेड सर, रट के गया था ट्रिपल आई करके, तो हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी, इंसर्जेंसी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. व्हेन दे हर्ड दिस आंसर, दे थॉट कि अच्छा ये लड़का प्रिपेयर्ड है, तो दे जंप्ड. दे डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम झारखंड थ्रू आउट द इंटरव्यू आफ्टर दैट. तो वो थोड़ा सा, इवन इफ यू नो द आंसर, यू शुड गिव इट अ थॉट, शो देम दैट यू आर एक्चुअली थिंकिंग एंड देन पुटिंग अप द योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम, है ना. तो वो एक चीज है. अभी झारखंड रिलेटेड मोर और लेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली बात थोड़ी कम हो गई है, बिकॉज लास्ट गवर्नमेंट कुड कंप्लीट its tenure and this government is also going quite stable, unlike earlier times. But still they keep asking about political instability. What do you think is the reason? The basic reason we all know है ना, 3 party system हो गया है यहाँ. Wherever there is a local party which is strong enough to contend a national party, there this instability is always there. Vis-a-vis south where national party is not at all there, local parties only dominate, वहां भी स्टेबिलिटी आ जाती है वन बाय वन करके. बट वेर एवर देर इज अ थर्ड पार्टी अपार्ट फ्रॉम 2 national parties which is strong enough to contend both of them, then there is instability, because that party has no allegiance to either of the national parties. They can go with either of them depending on whose government, with whom they can form a government. जैसे Janam was with BJP earlier, then again today they are with Congress. Tomorrow who knows, if Congress is not happy, then again they will turn around and take a U-turn and be part of the BJP. So basic reason behind it is the third party factor. Apart from that, the ideology of national parties is not in contention with ideology of the local party. जैसे बीजेपी, if so don't name the parties, but you can talk about party 1, party 2, party 3, and you can say कि political instability का कारण third party है ना. apart from that, the ideologies are not contending. जैसे ट्राइब को दोनों ही चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी इज एंटी ट्राइब और कांग्रेस इज एंटी ट्राइब. none of them is anti tribe. They might be having reservations related to proselytization of tribals into Christians for one party and the other is not, but they are not anti-tribe. So they have no ideological barriers to form a party together. तो वो एक रीजन हो सकता है. दूसरा, इफ दे टॉक अबाउट इंसर्जेंसी, अभी क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा. इफ दे से व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंसर्जेंसी, तो यू कैन definitely talk about that. An insurgency in general in Jharkhand is reduced to a great extent, mostly because of loss of public support. And what today is there in Jharkhand is mostly splinter groups which are mostly extortionist in nature. And the moment a movement turns extortionist, turns uh, radical without a reason, public support falls. तो अभी झारखंड में जैसे कि 19 out of 24 districts,
is Naxal affected. बट वो ना वो फिगर्स बेसिकली इस पे होते हैं कि लास्ट 3 इयर्स में कोई इंसिडेंट हुआ या नहीं, है ना। तो अब वो इंसिडेंट एक छोटा सा पर्चा भी हो सकता है ना, तो वो तो कहीं भी हो जाता है। और क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली और फ्रॉम द एंगल ऑफ द पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स माइंडेड, मैं थोड़ा सा ना इसमें बैश नहीं करना चाह रहा हूँ, डोंट टेक इट on the face value, but true picture is the moment you declare it Naxal free or insurgency free, there are sort of funds which get stopped. जैसे SCA एक फंड है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट, विच इज 35 करोड़ पर ईयर पर डिस्ट्रिक्ट, वो बंद हो जाएगा। SRE फंड होता है फॉर द CAPF एंड पुलिस को भी मिलता है, तो वो भी बंद हो जाएगा। तो वो भी एक रीजन रहता है टू कीप इन द द वन दैट वी हैव रेड इन कपल ऑफ आर्टिकल्स कॉल्ड रेस टुवर्ड्स बैकवर्डनेस, रेस टुवर्ड्स इंसर्जेंसी, बेसिकली बिकॉज ऑफ द फंड्स। तो जो थोड़े बॉर्डर लाइंस में भी हैं उनको हम आराम से डिक्लेयर भी कर सकते हैं, उनको भी हम नहीं करते हैं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व एंड दैट फंड इज जनरली यूज्ड फॉर डेवलपमेंट, सो इट इज नॉट दैट रॉन्ग आल्सो कि चलो ठीक है इस बहाने विकास तो हो रहा है ना। तो वो भी एक कारण रहता है, बट यू कैन मेंशन इट सटली, नॉट एक्सप्लिसिटली लाइक कि ये तो मतलब जानबूझ के कर रहे हैं। You can say it because there is a lot of fund involved, and since these areas have been affected by LWE, despite the presence of LWE has reduced, the developmental parameters generally in these districts is way lower than the other districts which are not which were never LWE affected. So the fund requirement will always be there for maybe a decade more. So on the pretext of saying it is no more LWE affected, stopping a huge amount of fund to such districts will not be beneficial for the people, because there can be a fallback any day, you know. So, and since the developmental interventions keep happening, so there is a less chance of fallback towards such insurgency groups for the people of the district. तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा जो हो गया, तीसरा जो हम लोग रिसोर्स कर्स की कई बार बात करते हैं, झारखंड बीइंग द home to more than 40% of mineral reserves, is still a poor, so-called poor state. What is your opinion about it? तो इसमें ना डुअल पिक्चर थोड़ा थ्रो करना है। इस एक पिक्चर है आपका ऑफ द पीपल। जनरली all the such places in the world where there is a lot of resource which can be sold as it is without any processing are generally suffering from high levels of poverty, and that brings along malnutrition, low levels of education and all that. तो उसमें क्या है, one problem is related to the society. So most of uh, I think, am I visible now? हाँ, तो क्या है कि most of the क्या है कि since there is coal, there is iron, there is there are other minerals including uranium also. Recently there was a catch also. क्या होता है ना, when there is coal, then you have a lot of immediate money, no? Short term money. Since you have a short term money, you don't have to invest your energy into developing yourself, developing your skills, developing some products and all. So imagine a family जिसके घर के अंदर ही कोयला है, so rather than struggling for food in the fields, just like in Bihar, they will, आज सो करेंगे तो एक महीने बाद उसमें फिर पानी डालेंगे, तो 3 महीने बाद उसमें खाद डालेंगे, तो 4 महीने बाद फिर उसमें राशन आएगा, देन दे विल सेल इट और ईट इट, देन दे विल गेट सम मनी। हियर इट इज इमीडिएट मनी। आप एक साइकिल में कोयला लोड किया और निकल लिए, 500 रुपया कमाए, आए, खाए पिए, सो गए। फिर एक सप्ताह चला वो 500, एक सप्ताह बाद फिर पैसा खत्म हुआ, फिर एक कुल्हाड़ी लिए और फिर एक टोकरी कोयला निकाले और फिर बेचने निकल गए। ठीक है, ऐसा ही बाकी मिनरल्स के साथ भी है। ऑल्दो जो मिनरल बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नीड करते हैं वहां पर थोड़ा कम है, जैसे आयरन है। आयरन यू कैन नॉट सेल द ओर एज इट इज, बट स्टिल देयर आर स्मॉल स्मॉल स्पॉन्ज फैक्ट्रीज हु डू बाय सच आयरन ओर एज वेल। उसी तरह यूरेनियम का भी है, या फिर एल्यूमिनियम का है, या फिर अदर मिनरल्स का भी है। बट कोल इज द सिंपलेस्ट मिनरल विच कैन बी digged in and then sold it as it is. तो क्या होता है कि
Human development which is required, investment in terms of your own development or the development of other institutions is required, वो डिमांड कभी जनरेट ही नहीं हो पाती है, स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट्स लाइक इफ यू गो टू अ डिस्ट्रिक्ट लाइक हजारीबाग और धनबाद, सो इन द रूरल एरिया दो और बोकारो, तो वहां पे क्या है कि दे डोंट इवन बॉदर टू स्ट्रगल मच कि अरे अभी तो पढ़ेंगे तो 6 महीना बाद है ना, दे हैव दैट नैरो विजन कि क्या करना है पढ़ लिख के, मतलब अभी 10 साल पढ़ेंगे, 12th पास करेंगे, पता नहीं नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे ही नौकरी नहीं है, दे कनेक्ट एजुकेशन विथ जॉब्स and then they have this short term approach of earning money. So that is the reason, one reason for resource curse. And the other reason which I feel so is the government has not been specific enough to deal with such problems. जैसे अब there is a fund called DMF है ना, District Mineral Fund, which is 26%. You must have read in MMDR Act and all. तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा. तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट ये बोलना चाहूंगा कि उसमें क्या है कि द प्रोसीजर टू एक्सेप्ट स्कीम्स इज लाइक ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में स्कीम्स लिए जाएंगे और उसके बाद उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन में भी ग्राम सभा का रोल होगा. बट प्रैक्टिकल क्या है कि ग्राम सभा जनरली डोंट हैपन. वो मुखिया को बोल दिया, पहले स्कीम स्टेट से चुना जाता है कि ये 200 करोड़ का जल मीनार लगेगा, एंड उसको जबरदस्ती आम सभा कराया जाता है, ग्राम सभा वहां गांव में बैठ के, फिर उसको पारित करके उसको एज ए डॉक्यूमेंट लगा के फिर उसके बाद चुपचाप कर देते हैं. एक रीजन ये भी है कि व्हेन यू सिट इन अ रियल ग्राम सभा द रियल डिमांड्स डोंट कम. दे विल बी लाइक कि मेरे घर में एक छत बनवा दीजिए, तो मेरे घर के अंदर चापाकल लगवा दीजिए. तो the demands are also not genuine. So the approach should have been first regular meetings of Aam Sabha, empowerment and awareness of the Aam Sabha, empowerment in terms of making them aware about their powers, and then a real Aam Sabha for selection of schemes, then the implementation of schemes. But उस stage में कोई जाना नहीं चाहता. Everybody is like कि somebody has given some MLA has given some scheme, some MP has given some scheme, और उसको फिर implement कर देते हैं. उसकी वजह से एम्पावरमेंट कभी नहीं हो पाता है. ठीक. कि दूसरा जो गवर्नमेंट का एपैथी बोल लो या गवर्नमेंट का लेस स्पेसिफिक इंटरवेंशन बोल लो, ये कारण है रिसोर्स कर्ज का या अंडर डेवलपमेंट का. You can also mention कि how strategically the transportation cost of coal through railways or otherwise were reduced or kept at a very low value, close to zero, for transportation of coal from Jharkhand to other places, is also one of the major reasons for no development, no investment coming in through industries in Jharkhand. So just imagine a case in which you get coal at same price in Punjab as you get in Jharkhand. Would you ever think of developing an industry in Jharkhand? No, because the transportation thing or the overall HR thing or your entrepreneurial habits or entrepreneurs in general are residing in these western states. So when there is a cost disadvantage, then only they will come. बट स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ऐसा कर रखा था कि प्राइस बहुत कम है, और इफ यू बाय कोल इन झारखंड, इफ यू बाय कोल इन लुधियाना, द प्राइस इज ऑलमोस्ट सेम. सो यू प्रिफर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन लुधियाना देन इन झारखंड. वो भी एक मेजर रीजन रहा है. स्लोली वी एज ए स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट वी आर पिचिंग इन फॉर चेंजिंग दोस पॉलिसीज. तो वो उसमें भी काम चल रहा है. तो दीज आर कपल ऑफ रीजंस फॉर रिसोर्स कर्ज. आई थिंक देयर आर कपल ऑफ वो ले लेते हैं. तो okay, so sir, why development not happening despite fall in LWE in these areas? Okay, कौशल, या देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा ना, मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ना, you should have a very clear understanding of development. Development is not what you think, what I think. मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ अपने ही क्वेश्चन, अपने ही इंटरव्यू से. So one of the board members asked, that time it was very unstable government, तो 2014 की बात है. One of the members asked, Jharkhand got separated from Bihar in 2000. उस समय ना बिहार बहुत अच्छा कर रहा था. ठीक है, अभी भी अच्छा ही कर रहा है, बट उस समय
ज्यादा ही मीडिया माइलेज बोल लो या ज्यादा ही प्रोजेक्शन था कि बिहार इज डूइंग रियली वेल, शाइनिंग बिहार, रोड्स आर गेटिंग बिल्ट, डेवलपमेंट पैरामीटर्स में बिहार इज शाइनिंग, अंडर नीतीश कुमार एबल लीडरशिप इन द अर्लियर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म के बाद ही हमारा इंटरव्यू था, तो देवर लाइक यार 2 टर्म हो गए तुम्हारी भी सरकार के, 10 साल से कोई सरकार नहीं बना पाया है, 15 साल से। इट इज सच अ इन सच अ बैड शेप and Jharkhand is not developing, Bihar is developing. Do you think it was logical to separate Jharkhand from Bihar? ऐसा नहीं, अच्छा नहीं होता अगर झारखंड बिहार का ही पार्ट होता, और झारखंड वाज आल्सो, झारखंड would also have been sitting in the same train of development in which Bihar is sitting today. This was their question. So my answer was like, sir, for me, sir, development has, sir, development in general is not limited to the parameters that is being shown for Bihar or other states. For me, development without participation is no development. For me, development without being ecologically sensitive, without being politically participative, without being uh, inclusive, without being socially inclusive, without being uh, so ऐसे करके 6-7 अभी याद नहीं आ रहा, तो is no development. Last 3-4 years, I don't know what parameters one judges for development. Bihar might be leading us, Bihar might be ahead of us in terms of building the amount of kilometers of roads they have built. Bihar might be ahead of us in terms of spending money on government schemes. Bihar might be ahead in terms of education, health indicators too. But for us, it was never a fight of development. It was always a fight of identity. मैं झारखंड से ही हूँ, तो I had to defend also. So for us, it was always a fight of identity. It was always a fight of discrimination. And I don't know about these parameters, but I do realize one thing from my own personal experience in Jharkhand. Earlier, when we used to cross any chowk chaurahas, we used to see so many policemen standing, most of them from Bihar. But today, when I get my vehicle fueled up, I see tribal tied to women as pumpmans and pump women. Today in Chowks and Chorahas, I see a lot of tribal women and men who are actually working as constables, working as traffic policemen, vis-a-vis earlier times when 90% of them were from Bihar region. Bihar mat bolna, because earlier it was also Bihar, Jharkhand was also Bihar. तो इस तरह से करके हम लोगों ने बताया था। अभी योर क्वेश्चन, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो एक तो ये विजन हो गया ना, ये विजन रखना। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाई डेवलपमेंट इज नॉट हैपनिंग, उसमें ये है यार, डेवलपमेंट इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का जजमेंट पहले तो देना नहीं। अगर उन्होंने पूछा तो तुम्हें कहना है कि सर डेवलपमेंट इज not a go not something that can achieved overnight. It is a process, and I believe we are in that process. Since Jharkhand as a state has been in discriminatory state of affairs since decades, it will take decades to come out of that. And LWE in general is not averse to development per se, if we go by the vision or the ideological policy of the LWE bodies. जैसे माओविज्म ऐसा नहीं है कि एंटी डेवलपमेंट है, वो भी चाहते हैं डेवलपमेंट हो, ठीक है, बट ये जो एक्सट्रीमिस्ट है वो डेवलपमेंट है, एंटी डेवलपमेंट है। इसमें तुम एग्जांपल दे सकते हो कि टुडे द स्प्रिंटर ग्रुप्स लाइक टीपीसी है, या फिर टाइगर फोर्स है, या फिर एक और है, एक बड़ा सा प्रसूति कमेटी हो गया, ऐसे 3-4 नाम आप लोगों ने तो पढ़ ही लिए होंगे, मैं भूल गया हूँ। तो वो उन नाम को कोट करके ना, यू कैन से कि दीज पीपल हैव बीन hindrances to development and these are still existent in most of the LWE affected areas. Yes, they are going slowly and so is development happening. ठीक है, तो वैसे बोल सकते हो।
दूसरा क्वेश्चन है, सर कैन यू टेल अस व्हाट हेल्प्ड यू एलिवेट योर प्रिपेयर्डनेस फ्रॉम 190 to 210? वाज इट फंडामेंटल और इटरेटिव? आई आस्क्ड अ कैंडिडेट हु गॉट 190s इन प्रीवियस अटेम्प्ट. अच्छा ठीक है. देखो यार, एक तो है ना, लक फैक्टर तो इज देयर, बट वी कैन नॉट टॉक अबाउट दैट हियर. वी आर हियर फॉर प्रिपरेशन. तो उसमें मैं कहूंगा कि यार 190s के टाइम में भी मैं उतना ही सिंसियर था. तुम भी रहे होगे, सभी लोग रहते हैं. बट 210 वाले टाइम में ना आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. तो मैं मुझे लगता है कि आउट ऑफ 100 questions if they asked, I mean, I'm taking a number, not 100, but 100 out of 100%, I think 70 to 80% questions were predicted. You know, I was already aware कि यही पूछेंगे. तो बिकॉज आई हैड प्रिपेयर्ड 3-4 नोटबुक्स ऑन माई सेल्फ, ऑन माई डैफ, और उससे मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे यार. मतलब मुझे लगता है जैसे, और क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है. तो व्हेन यू प्रैक्टिस यू थिंक अबाउट यू नो कि क्या बोल सकते थे. जैसे एक बार आपने भी इंटरव्यू सभी ने दिया होगा, अगर किसी ने दिया होगा तो तुम्हें लगता है अरे ये क्वेश्चन पे ये बोलते तो मजा आता, ये छूट गया यार बोलना. ये हमेशा रहेगा और आप ना पूरे साल सोचते रहोगे जब तक वो साल के बाद दूसरा इंटरव्यू नहीं आता, या अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा तो पूरी लाइफ सोचते रहोगे ये बोल देते तो कितना अच्छा होता. तो ये ना सिर्फ मैं सोचता नहीं था, आई यूज्ड टू राइट इट डाउन कि और क्या क्या ऑप्शंस थे मेरे पास. व्हाट ऑल कुड आई हैव सेड, नो व्हाट ऑल कुड हैव बीन पुट फॉरवर्ड, व्हाट ऑल आई शुड नॉट हैव सेड. आई यूज्ड टू राइट देम डाउन. और ये इटरेटिव मेथड जो तुमने बोला है, उसी से 6-7-10 बार लिखने के बाद वो आ जाता है. जैसे I would quote one example. The moment I entered the board, it was Kilim Sungla ma'am's board. So the first question she asked, 15 में उन्होंने बहुत कम नंबर दिए थे, 14 में बहुत अच्छे नंबर दिए. 14 में मेरा सिमला डेविड पी सिमला सर का बोर्ड था. 15 में उनका बोर्ड थोड़ा टफ हो गया था, और मतलब लोग बता भी रहे थे 1-2 दिन से कि उनका बोर्ड अभी रफ हो गया है. तो जैसे ही मैं अंदर गया तो फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड, okay, you are already in service, okay, IRS income tax, okay, Bihar, Jharkhand, okay, fine. So you must be aiming for the top ranks. तो मैंने कहा yes ma'am, I am. Okay, fine. So your preferences are Jharkhand, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Bengal, Assam. So then the first question she asked me, I have seen toppers. You are aiming to be a topper? I said yes ma'am. So I have seen toppers filling bigger and better states, but I see all your choices as smaller and filthy states. Why so? Then I said, ma'am, my choices are so because you and many others are calling them filthy states. तो she smiled, है ना, वो इन pun intended था, वो चाह ही रही थी कि मैं ऐसा कुछ बोलूं, है ना. तो उसके बाद बहुत स्मूथ हो गया यार. उसके बाद दे ऑल स्माइल्ड, वन ऑफ देम लाफ्ड आल्सो. ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा स्मूथ हुआ. तो ये ना थोड़ा प्रेजेंस माइंड की मैं जो बात कर रहा था वो था, है ना. तो इफ यू हैव दैट यू नो नैक, तो मजा आ जाता है. मतलब ठीक है. वैसे इंटरव्यू मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा आउट ऑफ झारखंड जाके बोलूं तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द इंटरव्यू. वन इज द टेक्निकल इंटरव्यू, अदर इज द ओपिनियन इंटरव्यू. अगर आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, यू आर फ्रॉम आईआईटी, यू आर फ्रॉम आईआईएम, यू आर फ्रॉम यू नो एम्स, और अ डॉक्टर, और यू नो बहुत अच्छे कॉलेज से हो, बीआईटी एनआईटी भी अच्छा हुआ है, तो अगर वहां से हो, डोंट आस्क knowledge based questions. They generally ask opinion based questions. The moment you shift, you are not able to answer any knowledge based question, they shift to opinion based questions. Sorry, they stick to knowledge based questions. क्योंकि वो ये चेक कर रहे होते हैं कि मेंस तो नहीं हो गया. तो उसके लिए क्या है ना कि मतलब अगर आपका प्रोफाइल वीक है, ऐसे कोई नॉर्मल कॉलेज है जिसका नाम हम लोग नहीं सुनते हैं इन जनरल, तो प्लीज प्रिपेयर फॉर योर ग्रेजुएशन ऑल्सो, फॉर योर यू नो प्लेस वेयर यू बिलोंग ऑल्सो. जैसे इन्होंने मुझसे 3-4 ऐसे ओपिनियन वाले क्वेश्चन पूछे. ओके, यू आर फ्रॉम बिहार, सो डू यू थिंक देयर इज डॉरी इन योर स्टेट? तो मैंने बोला कि यस मैम इट इज देयर, बट इट इज मोस्टली इन अपर कास्ट एंड हायर क्लास. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका था, अच्छा यू बिलीव इन कास्ट, सो डू यू बिलीव इन कास्ट? तो मैंने बोला मैम बाय द टाइम आई कुड नो व्हाट इज कास्ट, आई वाज ऑलरेडी बोर्न इनटू इट. So I cannot deny caste as a fact, but definitely don't I definitely do not believe in any of the practices associated with it. तो हंसने लग गए वो. फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट, why do you think there it is not there in your in lower caste and lower class?
Then I give them examples of economic dependence and all that. ठीक है, उसके बाद and institutions which are there. Then she asked me कि कैसे रोकोगे झारखंड बिहार में. There have been instances where these bad systems of society are percolating into the societies of the tribals or the poor or the STs. How will you stop it? तो मैंने बताया कि मैम वी कैन स्टोल माघे एंड ऑल दैट. अब एक इंस्टीट्यूशन है ट्राइबल सोसाइटी में जिसमें कोई किसी को भी उठा कर ले जाता है और शादी कर लेता है, 1 साल रहता है साथ में, 1 साल बाद डिसाइड करता है शादी करेंगे कि नहीं. अब ऐसे इंस्टीट्यूशंस में दहेज कहाँ से आएगा? पहले ही चली गई ये लड़की, दे तो रहे नहीं ऐसे फॉर्मली, कन्यादान तो हो नहीं रहा. तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. ऑल्दो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं होना चाहिए, रेगुलराइज करना चाहिए. फिर देयर इज अ सिस्टम ऑफ घोटुल जिसमें यंग कपल्स बैठते हैं, रहते हैं और बातें करते हैं, जो भी है. तो वो लोग, उन लोगों का भी ऐसा इक्वेशन है मेल फीमेल का कि देयर कैन नॉट बी सच. तो उसमें पूछा व्हाई देयर इज नॉट देयर. मतलब डॉरी एज अ सिस्टम मैम इज नॉट institution itself. It is basically a question on the status and dignity of women, and whichever society has this lower vis-a-vis men, there such social practices exist. In societies of Jharkhand, in lower society, lower class or lower caste or tribal society of Jharkhand, this क्या बोलते हैं, इक्वालिटी इज देयर, और ये सब बता दिया तो वो हो गया ना. तो कहने का मतलब उसके बाद आफ्टर दीज ओपिनियन क्वेश्चंस कपल ऑफ मेंबर्स आस्क्ड मी कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स इन झारखंड, व्हाट इज द लिटरेसी परसेंटेज, व्हाट इज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट, और ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सुने, 8-10 लगातार पूछे मुझसे ना. और वो सब ऑब्वियसली आप भी रट के जाते हो, मैं भी रट के गया था, तो वो सब मैंने बता दिया था. देन अगेन दे केम बैक टू ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन. तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि आप झारखंड से हैं, अगर बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो ईच एंड एवरी डेटा पॉसिबल है ना, सेंसस का हो, फॉरेस्ट सर्वे का हो, NFHS का हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रट लीजिएगा, है ना. भले ही आप जो है एग्जैक्ट फिगर ना बता पाए, but try to give them a, even if you are not able to give them exact figure, try to give them a more than type of figure. तो कम से कम ये हो जाएगा आपका कि आपको ऐसा है कि आपको ओवरऑल पिक्चर पता है. इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, यू नो द पिक्चर. ठीक है, तो वो एक बार जरूर रट के जाना. अदरवाइज नहीं तो ना, 1-2 क्वेश्चन भी अगर ऐसे आसान वाले छूट गए तो यू विल फील बैड आल्सो. That shows on your face, that reduces your confidence, and then they keep on moving around the fact based questions. अगर तुमसे पूछ लिया कि ये झारखंड का लिटरेसी परसेंटेज कितना है, and you are like कि sir I think this, then they will be asked which state has the highest, क्योंकि वो तुम्हें they are trying to bog you down, और पहली बार में ही बता दोगे कि सर इतना है एग्जैक्ट, तो they don't bother much, है ना. तो इसीलिए झारखंड बिहार के सारा पैरामीटर रख लेना. सर SDG इंडेक्स को मैं, अच्छा, इफ माय आंसर्स आर नॉट परफेक्ट एनफ, यू कैन आस्क बैक उत्कर्ष, कौशल एंड ऑल. ओके कौशल अगेन, सर SDG पैरामीटर मान रहा हूं. ओके, वो है भी, यस दे आर. SDG इंडेक्स इज वन ऑफ द पैरामीटर्स टू मेजर डेवलपमेंट, बट मेरे हिसाब से इट इज नॉट द ओनली वन. जैसे मैं तुम्हें आई वाज पोस्टेड इन वेस्ट सिंहभूम, व्हिच इज वन ऑफ द एक्सेल अफेक्टेड, वन ऑफ द मोस्ट इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, है ना. तो SDG में मॉल न्यूट्रिशन है, सभी को पता है ना. तो मैं तुम्हें बस एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, थोड़ा सोचना है इसके बारे में. जरूरी नहीं है कि आप इस पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करें, जरूरी नहीं है कि इस पर्सपेक्टिव को आप आंसर में बोलें, बट दिस पर्सपेक्टिव विल हेल्प यू थिंक मोर अबाउट व्हाट यू हैव रेड अबाउट डेवलपमेंट. ठीक है, तो इफ यू गूगल वेस्ट सिंहभूम, जरूर गूगल करना मेरे हिसाब से. तो अल जजीरा का एक डॉक्यूमेंट्री है, shows in some areas of West Simbhum is way more malnutrition affected than some areas of Africa also. ठीक है, अल जजीरा had come and covered it. उसके बाद हम लोगों ने काफी वीडियोस बना के काफी इंप्रूवमेंट करके भेजा भी अल जजीरा को, बट दे नेवर केम, क्योंकि नेगेटिव न्यूज ही कवर करना होता है इनको, क्योंकि अदरवाइज TRP कैसे बढ़ेगी, है ना. तो अच्छी न्यूज के लिए तो कई बार हम लोगों ने उनको कॉन्टेक्ट किया, बट दे नेवर केम. वी एक्चुअली सेंड देम मेल्स विद फैक्चुअल डेटा, बट कुछ हुआ नहीं. खैर वो छोड़ो. तो देयर इज अ डॉक्टर देयर. तो हम लोग चाईबासा में वी वर्कड अ लॉट ऑन मॉल न्यूट्रिशन. हम लोगों ने पोषण लड्डू भी बनवाया, डिफरेंट फ्लेवर्स के, 5 दिनों में 5 अलग अलग फ्लेवर के लड्डू आंगनवाड़ी में बंटवाया, है ना. यू कैन
Google these things and code in your answers. मतलब I also talk to other aspirants through other forums, and many of them quoted example of West Simbom examples what I have done or other officers have done good works. क्योंकि कई बार ना आपको ये एग्जाम्पल देने से एक तो आपका आंसर फॉर्म हो जाता है और दूसरा आपके पास कुछ होता है अलग बात करने के लिए, नहीं तो फिर वही बुक बातें करोगे विच इज वेरी बोरिंग फॉर द बोर्ड। आप ही सोचो ना, द सेम बोर्ड इज टेकिंग इंटरव्यूज ऑन अ डेली बेसिस फॉर 20-30 कैंडिडेट्स फॉर लास्ट 3-4 मंथ्स, वो भी बोर हो गए होंगे ना ये सब सुन सुन के कि आंद्रे बेते ने ये कहा था और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की रिपोर्ट ये कहती है और नीति आयोग ये कहता है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर ये नीचे है ये ऊपर, ये सब सुन सुन के बोर हो गए वो भी, है ना। तो इफ यू कैन कोड गुड एग्जांपल्स फ्रॉम गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स देन दैट विल गिव योर आंसर अ डिफरेंट एंड प्लेजेंट टच। दे गेट इंटरेस्टेड ऑल्सो, अच्छा कौन किया था, कैसे किया था, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, तुमको लगता है ये सही है, इसमें और क्या कर सकते हैं, तुमको लगता नहीं इससे ये हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आने लग जाते हैं, देन इट इज फन। ठीक है, तो एक बार जरूर सर्च करना गुड प्रैक्टिसेस करके। तो वैसे में हम लोग जब मॉल न्यूट्रिशन में काम कर रहे थे तो हम लोग पोषण लड्डू दिए, फिर उन लोगों को स्वेट शर्ट दिया बिकॉज उन लोगों के पास कपड़ा नहीं है ऑब्वियसली। तो कपड़ा नहीं है तो सर्दी बुखार होता है तो दे फॉल बैक इवन इफ दे आर हिस्ट पुस्ट। मतलब कितना भी आप न्यूट्रिशन खाना दे दे के उनको ठीक करते हो, जैसे ही मौसम चेंज होता है एक बार बुखार सर्दी आई 1-2 किलो का वेट लॉस हो जाता है। तो वो जब रिसर्च में आया, रिसर्च में क्या एक्सपीरियंस में आया, सॉरी एक्सपीरियंस में आया, तो हम लोगों ने फिर शर्ट शर्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना। तो उसके बाद फिर सर्दी खांसी के इंसिडेंट्स कम हुए, डायरिया के इंसिडेंट कम हुए, फिर टॉयलेट सब जगह ठीक कराया ताकि क्लीनलीनेस, रनिंग वाटर सब जगह कराया ताकि अवेलेबल होने से भी फॉल बैक होता है मॉनिटर। जो आपका बच्चा सैम मैम में नहीं था वो सैम मैम में चला जाता है ना। तो एक पर्सपेक्टिव जो मैं देना चाह रहा था, तो वन ऑफ द डॉक्टर्स को मैं बहुत प्रेस कर रहा था, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उसने एक दिन बड़े अच्छे से प्यार से मुझे बिठा के कहा कि अच्छा सर एक बात बताइए, आप जो, अच्छा इंसिडेंट बता देता हूँ। इंसिडेंट ये है कि एक बच्चा था उसको पेट में बड़ा गोला था, है ना। उसको हम लोग इलाज कराना चाह रहे थे, ही डिडंट हैव, मतलब फैमिली डिडंट हैव मनी। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको बोला कि इसका इलाज करने के लिए जमशेदपुर ले जाना पड़ेगा। तो जमशेदपुर जाने के लिए उनके पास गाड़ी नहीं है, तो मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी से उसको भिजवाया, एक स्टाफ को भी साथ में भेजा, पेरेंट्स, बच्चा, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, ओके, जस्ट छोटा सा बच्चा न्यू बॉर्न विद द पेरेंट्स एंड वन ऑफ माय स्टाफ, एक हॉस्पिटल मैनेजर था, उसके साथ भेजा जमशेदपुर। 11-12 बजे तक रात को पहुंचे वो लोग, सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब टीएमएच में हुआ। उसके बाद उन दोनों को, पेरेंट्स को भूख लगी थी तो उन्होंने हॉस्पिटल मैनेजर को कहा, तो हॉस्पिटल मैनेजर को मैंने 5,000 दे के भेजा था कैश, तो उससे 100 रुपया उसने दिया कि जाइए आप लोग खाना खा लीजिए। तो उसके बाद 11 बजे के बाद वो जो खाना खाने गया वो टिक करके जाइएगा, बच्चे के साथ एक रहिएगा। ये दोनों जो फरार हुए उसके बाद आए ही नहीं। 3 बजे रात को फिर आई गॉट अ कॉल कि सर ये तो आ ही नहीं रहे, तो पेरेंट्स ही फरार हो गए। तो उसके बाद हम लोगों ने तुरंत उसको पता कराया, तो फिर पता चला कि ये लोग वापस आ गया गाँव। फिर बच्चे को लेके वो हॉस्पिटल मैनेजर, सोचो पहला 1 दिन का 2 दिन का बच्चा को लेके वो हॉस्पिटल मैनेजर वापस लौटा। दूसरे दिन हम लोग उसके गांव में गए, उसका ओरिएंटेशन किए, पर वो मान ही नहीं रहे, नहीं सर वो तो मार ही दीजिए उसको टाइप का। ठीक है, उसके बाद किसी तरह लाके हम लोगों ने उसका इलाज इलाज कराया। खैर ये तो एक बात हो गई। उसके बाद हम लोग बहुत दुखी हुए कि यार कैसे पेरेंट्स है टाइप, है ना। कैन यू इमेजिन द सेम थिंग। हाँ, तो सॉरी मेरा सीनियर का कॉल था, तो खैर
तो मैं ना थोड़ा कट शॉर्ट करता हूँ, कट शॉर्ट यही करता हूँ। तो मैंने उससे जब बहुत परेशान होकर पूछा तो वो बोला कि सर इनको सर नहीं फर्क पड़ता है सर, आप और हम जाते हैं इनके गांव में, इनके यहाँ अभी भी जो 1800-1900 में चल रहा था ना दूसरे देशों में और इंडिया में भी, वो अभी भी यहाँ चल रहा है। उसमें क्या है कि अभी जैसे आपके यहाँ क्या है, कुत्ते के 6 बच्चे होते हैं तो 4 बचते हैं, 2 बचते हैं, 4 मर जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कुत्ता का 6 बच्चा हुआ, 6 को बचना है। वैसे इंडिया में भी आदमी के बच्चों के साथ इन एरियाज में हम ही लोग एसडीजी पढ़ लेते हैं, एमडीजी पढ़ लेते हैं और जा जाके उसको बोलते हैं अरे तुम्हारा बच्चा पतला है, तुम्हारा बच्चा मॉल न्यूट्रिशन से है, तुमको तो ये चाहिए, तुमको तो उसको नहीं चाहिए, उसको पता ही नहीं है। और दे आर यूज्ड टू सीइंग चिल्ड्रन अंडरवेट एंड देयर लाइफ स्पैन इज आल्सो 45-50। हम लोग जबरदस्ती उसको बोलते हैं नहीं आपका लाइफ प्लान तो 90 है, 70 है, आप कैसे मर जा रहे हैं जल्दी, है ना। तो द पॉइंट आई वांट टू मेक इज what we see SDG and MDG as development goals, people might not be seeing it as it is. They might be having a totally different perspective towards it. Can you imagine any parent in this country leaving their own child to the fate of random people कि जो होगा देखा जाएगा, मरने दीजिए ना टाइप? कैन यू थिंक दैट? अभी तो आप देखेंगे कीटो मिलाप में एक बच्चा को छोटी सी बीमारी होगी, करोड़ों का इंजेक्शन मंगा कर उसको दिलवाते हैं, करोड़ों का सर्जरी कराते हैं। चाईबासा में ऐसा नहीं है और मेनी प्लेसेस इन इंडिया ऐसा नहीं है। तो जो एसडीजी की आप बात कर रहे हो तो ये पर्सपेक्टिव में देना चाह रहा था, थोड़ा सोचना और उसके हिसाब से आंसर करना है ना। नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है सर, इफ दे आस्क व्हाट इज योर ओपिनियन इन what is your opinion is good for Jharkhand regional party rule or national party rule? Why would they ask this? नहीं ये तो चंदन, this type of question they will not ask. ठीक है, पार्टी कोई अच्छा बुरा नहीं होता है ना, उनकी पॉलिसीज अच्छी बुरी होती है। तुम इसको ऐसे आंसर कर दो अगर पूछते हैं तो, सर my opinion will be totally based on their manifesto and policies, not on the identity whether they are regional or national. ठीक है, तो ये तो मतलब एक वैसा है। वाइड अगर ऐसा बोल दें कि गिवन द मैनिफेस्टो इफ यू थिंक कि मैनिफेस्टो पढ़ रखा है तुमने तो बताओ, तब तुम अपना मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद ओपिनियन दे सकते हो। वो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है, आई विल नॉट टेल यू कि क्या मेरा ओपिनियन है, वो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, दूसरा है सर, व्हाई डिस्पाइट गुड मिनरल्स झारखंड स्टिल स्ट्रगलिंग टू डेवलप? ये मैंने बता दिया है पहले ही, शुरू में ही कवर कर दिया था, बट स्टिल शॉर्ट में इतना ही है कि दिस इज सफरिंग फॉर रिसोर्स कट बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म gains that people get. Also the policies which are there in place today are not made thinking from the perspective of the people but are made from the perspective of more revenues, more income, more industries and all that. That is the problem. ठीक है, उसके बाद है despite 25 years since PISA rules have not been notified in Jharkhand, I even heard that nominated Vikas councils were created in some scheduled 5 areas by a previous CM. What's your opinion? Is there a legitimate reason for not notifying? Okay, उत्कर्ष, तो PISA rules basically अभी I am डायरेक्टर पंचायत ओनली, तो मैं ही देख रहा हूँ PISA rules। तो PISA rules के ड्राफ्ट अभी तैयार हो गए हैं एंड वी हैव पुट अप आल्सो, अभी कैबिनेट में जाएगा अप्रूवल के लिए। एक बार अप्रूवल हो गया तो देन इट विल गो फॉर we will go for notification of rules. तो आंसर टू डिस्पाइट का ये होगा कि सी PISA is a very strong act which has rules that can change the total dynamics of many departments. If we follow PISA in letter and spirit both, departments like Department of Mining will be shut totally. Departments like Department of Industries will have very less role to play. Departments like JSMDC, Jharkhand State Mineral Development Corporation, will be shut. Departments like क्या है ये टोबैको वाला जो हेल्थ डिपार्टमेंट में, that will also be shut. क्योंकि उसमें क्या है ना, PISA में total powers is given to the auction of the mines, you know, revenue collection of the mines, गाड़ी को जो चालान वालान देना है वो, every shop that is opened through using the resources of that local place will be given licenses through the tribal sabhas और ग्राम सभास। तो उसका एक कारण मेजर कह सकते हो सर, एक तो है कि intentions have not been strong enough from the political heads, एक। दूसरा है the sabhas which have been notified in PISA to be empowered enough to take these actions or these works are not neither experienced nor trained enough to do these. अब तुम सोचो कि
लोहे की खुदाई हो रही है, ट्रक का ट्रक जा रहा है या ट्रेन से जा रहा है, तुमको लगता है कि वहां का ट्राइबल ग्राम सभा जो है वो सबका काउंटिंग करेगा और सबका अकाउंटिंग करेगा और उसका पैसा डिसाइड करेगा और उसका जो एक शेयर है वो स्टेट के खाते में जमा करेगा, एक शेयर अपने खाते में जमा करेगा, फिर वीकली और मंथली मीटिंग करके उसको कैसे यूटिलाइज करना है गांव में वो करेगा, हर गाड़ी को चालान देगा, कंप्यूटर से चालान निकलता है, उस चालान का चेकिंग करेगा। ये सब ना पीसा में मतलब लिखने में बहुत अच्छा है, बट वो करना बहुत मुश्किल है और क्लोज टू इम्पॉसिबल इन सम एरियाज। तो वो ये दो मेजर रीजन है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल विल इतना स्ट्रांग रहा तो वो कर सकते हैं कि चलो नुकसान ही सही, 10 साल नुकसान सहेगा सरकार, कोई रेवेन्यू नहीं आएगा डिपार्टमेंट को, लेकिन हम लोग एम्पावर करने के लिए करेंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि नहीं, हम 10 साल ट्रेनिंग देंगे, जब इतना ट्रेनिंग हो जाए कि ये लोग इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हम लोग ट्रांसफर करेंगे।